everyone, my name is Neha and in this class we are going to discuss 5th chapter of book Snapshots, that is Mother's Day of class 11th. So as you all know that we have read the chapter between the lines and we have discussed all the minute details of the chapter comprehensively in the previous videos. You can get all the videos in the playlist. In this class we are going to have a quick revision of the summary of the chapter. And the chapter starts with a conversation between two characters, that is Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. So before starting the chapter, I would like to introduce you all with all the characters. So here we have a family of George and Mrs. Pearson, and George and Mrs. Pearson have a son and a daughter, son named Cyril and daughter named Doris, right? So this is a complete family, George, Mrs. Pearson, and this is Mr. Pearson, George, and one is Doris, and the son's name is Cyril. And Mrs. Fitzgerald is the new neighbor, alright? Let's start then. So we are starting with a conversation between Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald, right? So now Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald, when they are in deep conversation with each other, Mrs. Pearson got to know that Mrs. Fitzgerald knows the art of fortune telling, right? So now before telling you about the characteristics of Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson, let me introduce you with the new neighbor of Mrs. Pearson, that is Mrs. Fitzgerald, right? Mrs. Fitzgerald has just shifted to Mrs. Pearson's colony. इनकी न्यू नेबर है मिसेस फिट्जजेरल्ड. सो एज हमारे लोकेलिटी में कोई नया आता है, सो वी ट्राई टू टॉक टू देम एंड नो देम वेल कि कहाँ से आए हो and what do you do, like what's your occupation and all these things. Like we try to be a bit friendly with the new neighbor so that we can make them comfortable. That's what Mrs. Pearson was trying to do. They both were in conversation and Mrs. Pearson was basically trying to make Mrs. Fitzgerald comfortable. And in the conversation, Mrs. Pearson got to know that Mrs. Fitzgerald knows the art of fortune telling. And Mrs. Fitzgerald asked Mrs. Pearson that if you also want to know your fortune. Mrs. Pearson obviously showed an affirmative response and a great interest in knowing her fortune. तो क्या होता है फाइनली, आई होप यू ऑल नो अबाउट द टैरो कार्ड रीडिंग. कार्ड से आपको फॉर्च्यून बताते हैं. सो मिसेस फिट्जजेरल्ड डिड दैट टैरो कार्ड रीडिंग एंड गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट मिसेस पियर्सन्स फैमिली, मिसेस पियर्सन्स लाइफस्टाइल, ऑल हर सीक्रेट्स. एंड नाउ मिसेस फिट्जजेरल्ड is actually complaining Mrs. Pearson about her ignorance in the family, about being rejected, about being ignored, about being dejected in the family. Mrs. Pearson is a bit shocked कि Mrs. Fitzgerald को तो सब पता चल गया है. And Mrs. Pearson admits the fact that yes, I know that I am not being treated in a good way in the family. I am treated, in a very bad manner. But then I'm helpless. I can't do anything in this matter because I can't, be rude with my family. I can't, be strict with them. This is something against my attitude. I cannot do this with, to my family. So Mrs. Fitzgerald then gave a suggestion. Mrs. Fitzgerald is basically trying to be a good neighbor, is trying to make Mrs. Pearson understand the fact that it is not about pampering your family, it is about spoiling them. So you must take some actions to make them understand the importance of mother in one's life. अब मदर की इम्पोर्टेंस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा टाइटल पे बात करना चाहूँगी. चैप्टर का नाम है मदर्स डे एंड द नेम इटसेल्फ इज टेलिंग दैट इट इज समवेयर और द अदर रिलेटेड टू मॉम. नाउ आई हैव सीन पीपल सेलिब्रेटिंग मदर्स डे. आई हैव सीन पीपल मदर्स डे अभी गया कुछ टाइम पहले. आई हैव सीन पीपल पोस्टिंग पिक्चर्स विद देयर मॉम्स एंड कुकिंग फॉर देम ऑन मदर्स डे. मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, हम एक दिन मदर्स डे वाले दिन अपनी मॉम के लिए कुक करके खुश हो जाते हैं. अगर मॉम भी ऐसे ही करने लगे, वो बोले मैं सिर्फ चिल्ड्रंस डे पे एक दिन खाना बनाऊंगी, देन सोच के भी डर लग रहा है ना बाकी और दिन खाना कैसा मिलेगा. See the importance of
a mother of a mom in one's life, सोच के भी हम घबरा जाएंगे कि बाकी और दिन काम करना पड़ जाएगा, एंड वो ये काम हर रोज करती हैं. So this chapter is going to basically tell us the importance of one's mother in one's life, and also how they should be treated and how actually they are treated in a family. Now if I ask you a question like how do you treat your mother, I'm sure 90% of you are going to reply by saying that we respect them and all. I do agree, but क्या आप में से कभी भी किसी ने कहीं और का गुस्सा मॉम पे नहीं निकाला होगा? क्या हमने कभी भी उनको काम करते हुए देखकर ये बोला है कि हम कर देते हैं सारा काम, यू जस्ट गो एंड रेस्ट? नहीं ना. हम जाने अनजाने में शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिनसे हम अपनी मदर को वो खुशी नहीं दे पाते हैं जो हमें देनी चाहिए. That we are going to learn in this chapter by the character of Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald. So now, as we just discussed that Mrs. Fitzgerald has got to know everything about Mrs. Pearson by looking at the cards, but after reading the cards, when she was in the process of telling her fortune, and Mrs. Fitzgerald is suggesting Mrs. Pearson that you should be a bit bold and make them learn a lesson about your importance in your family. But then Mrs. Pearson, being a meek or a submissive personality, she says that even if I try, I won't be able to be harsh with them. So you know, this is something next to impossible. अगर मैं try भी करूँगी, I won't be able to harsh, I won't be able to dominating with them, to be to behave in a dominating manner with them, because this is against my nature and I love my family a lot. So that's why I won't be able to do it. Now Mrs. Pearson said, if you won't be able to do it, then relax. I will do the favor for you. ये काम अब मैं करूँगी तुम्हारे लिए. Mrs. Pearson said, तुम कैसे कर सकती हो? How is it even possible? Mrs. Fitzgerald told Mrs. Pearson that I know an art of changing souls, changing personalities. As we have already got to know that she knows fortune telling, तो ये सारी magic और fortune बताना, ये सारी विद्या Mrs. Pearson जानती हैं. And she has learned all these things from Asian countries, right? में ये ईस्टर्न कंट्रीज़ में, एशियन कंट्रीज़ में कुछ टाइम रहने गई थी. जब मिसेस पियर्सन के हस्बैंड लेफ्टिनेंट बनने की ट्रेनिंग पे थे, उस दौरान मिसेस पियर्सन कह रही मेरे हस्बैंड ने तो काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन उनसे ज़्यादा मैंने सीखा ये सारी नॉलेज ऑफ चेंजिंग सोल्स, चेंजिंग पर्सनालिटीज़, टेलिंग फॉर्च्यून, जितना भी ये एस्ट्रोलॉजी ये सब है वो मैंने वहाँ से सीखा. सो यू डोंट वरी अबाउट दैट. मैं कुछ नहीं करना तुम्हें बस 2 मिनट यहाँ बैठना है. यू जस्ट हैव टू होल्ड माई हैंड्स लाइक दिस, एंड मैं एक मंत्र बोलूँगी, एंड आफ्टर दैट मिसेस पियर्सन के अंदर मिसेस फिट्जजेराल्ड की आत्मा आ जाएगी और फिट्जजेराल्ड के अंदर पियर्सन की आत्मा आ जाएगी. This seems strange, right? But this happened in the chapter. Obviously, it's a fiction. It's like a fictional story. So anything can happen in this. But हाँ कहते हैं रियल लाइफ में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं, बट लेट्स नॉट बिलीव इन दैट. सो अभी इसको फिक्शन की तरह रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चैप्टर में आगे क्या हुआ. सो लेट्स एंजॉय इट. एंड मैं वो मंत्र बोल रही हूँ जो मिसेस फिट्जजेराल्ड ने बोले, अर्शता डम अर्शता लम अर्शता लम डम बोना. आई रिपीट, अर्शता लम अर्शता डम अर्शता लम डम बोना. और नाउ Mrs. Fitzgerald is not Mrs. Fitzgerald. बॉडी तो Mrs. Fitzgerald की है, बट आत्मा किसकी आ गई है? Mrs. Pearson की, राइट? सो Mrs. Fitzgerald जो बहुत बोल्ड और स्ट्रॉन्ग थी, बाहर से तो ऐसी दिख रही हैं, बट अब वो ऐसी नहीं है, बिकॉज नाउ Mrs. Fitzgerald की पर्सनैलिटी चेंज होके Mrs. Pearson की बन चुकी है, एंड Mrs. Pearson के अंदर Mrs. Fitzgerald की सोल आ चुकी है. So Mrs. Pearson has become bold and dominating and very rigid kind of lady, just like Mrs. Fitzgerald was a few minutes back. And Mrs. Pearson, क्योंकि अब इसमें Mrs. Fitzgerald की आत्मा है, body change होते ही she asked for smoke because Mrs. Fitzgerald used to smoke, used to drink. वो हर बुरी आदत उनमें थी. और whereas Mrs. Pearson, like all the mothers, जैसे हम सबकी मॉम्स होती हैं, बहुत शरीफ,
सिंपल मीक टाइप की लेडी थी, लेकिन जैसे ही पर्सनालिटीज चेंज हुई, मिसेस पियर्सन ने पर्सनालिटी चेंज होते ही क्या मांगी? सिगरेट। क्यों? क्योंकि अब इनमें किसकी आत्मा है, किसकी सोल है? मिसेस फिट्जजेराल्ड की, राइट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो नाउ मिसेस पियर्सन, basically who has Mrs. Fitzgerald's soul, goes to Mrs. Pearson's family, right? This is the next scene. First scene was where Mrs. Fitzgerald and Mrs. Pearson, they both were in conversation. Mrs. Fitzgerald got to know the reality of Mrs. Pearson and they have changed the personalities. Now starts the second scene. In the second scene, Mrs. Pearson goes to Mrs. Pearson goes to her house. और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कौन कौन फैमिली मेंबर्स थे. मिसेस पियर्सन की फैमिली में थे मिसेस पियर्सन, मिस्टर पियर्सन हु इज जॉर्ज एंड डोरिस साइरल, राइट? ये 4 लोगों की फैमिली थी. हमने डिस्कस किया था मिस्टर पियर्सन हु इज जॉर्ज पियर्सन एज वेल, मिसेस पियर्सन, डोरिस इज द डॉटर, साइरल इज द सन. ऑल राइट. नाउ द मोमेंट मिसेस पियर्सन एंटर्स Mrs. Pearson house, basically, there she shows some different signs, like she's smoking and she's drinking and she's playing cards and she's being very rude and rigid to everybody. The moment daughter named Doris enters the house and she sees mom smoking and drinking, she's startled. She's like shocked, हैरान हो गई मॉम को देख के. जैसे ही उसने देखा कि मॉम वाज स्मोकिंग, एंड शी स्टार्टेड एंड अघास्ट, एस्टाउंड कि मॉम आप तो कभी स्मोक नहीं करती थी, आप कैसे स्मोक कर रहे हो? नाउ मिसेस पियर्सन, जो हमेशा आज तक बच्चों से बहुत ही सॉफ्ट टोन में बहुत प्यार से बात करती थी, डोरिस को बोल रही हैं क्या? डोरिस को बोल रही हैं I am smoking because I like it. What's your problem? Doris says, I have no problem, but still I'm just asking you because मैंने आपको कभी भी स्मोक करते हुए नहीं देखा. मिसेस पियर्सन ने थोड़ा सा और डांटा और बोला none of your business. Now डोरिस का सेकेंड क्वेश्चन. डोरिस बोली, मॉम जब सुबह गई थी, मैंने बोला था मैं वापस आऊंगी तो आप मेरी येलो सिल्क ड्रेस आयरन करके रखना बिकॉज I have to go to meet one of my very good friends. So have you ironed my yellow dress? Mrs. Pearson, no, नहीं आयरन करी. डोरिस थोड़ा सा गुस्से में आ गई क्योंकि अभी तक कभी कोई काम माँ से ना हो ऐसा हुआ नहीं था, और कभी बाय चांस रह भी जाए तो बच्चे बहुत बदतमीजी से मॉम से बात करते थे कि क्यों नहीं हुआ काम. सिमिलरली डोरिस का वही एटीट्यूड था. डोरिस ने थोड़ा गुस्से में पूछा, क्यों नहीं किया आपको? मैंने कहा तो था कि मुझे आज शाम को घूमने जाना है, मैं घर वापस आऊंगी तो मुझे मेरी येलो सिल्क ड्रेस प्रेस करी हुई आयरन चाहिए. मिसेस पियर्सन, आज तो मिसेस पियर्सन पहले जैसी मिसेस पियर्सन नहीं है. आज उनमें किनकी आत्मा आई हुई है? मिसेस फिट्जजेराल्ड की. सो उन्होंने बहुत ही रूडली जवाब दिया that I didn't feel like doing it, that's why I haven't done it. You go and you do it yourself. आज के बाद मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कोई भी फालतू काम. डोरिस बहुत हैरान परेशान हो गई हैं. इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है. मॉम इज स्मोकिंग, मॉम इज टॉकिंग इन अ रूड मैनर, मॉम हैज नॉट डन एनी वर्क, एवरीथिंग इज लाइक टॉपसी टर्वी इन द हाउस. ये हो क्या रहा है उसको समझ नहीं आ रहा. कह रही, मम्मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हो क्या गया आपको? कैसी टोन में आप बात कर रही हो मुझसे? आपको पता है मैं थक के आई हूँ काम करके. मॉम, थक के काम करके आई हूँ? इसकी तो तुम बात ही मत करो बिकॉज आई वर्क डबल द आवर्स यू वर्क. डोरिस ने जैसे ही बोला मैं काम करके आई हूँ तो माँ ने बोला मुझे मत बताओ तुम कितना काम करती हो, मैं तुमसे डबल काम करती हूँ, इसलिए लेट्स नॉट टॉक अबाउट वर्किंग हार्ड. डोरिस को फिर से चुप करा दिया. अब थोड़ा सा और डोरिस की बेइज्जती करना बाकी था. अभी तक की बेइज्जती से डोरिस बहुत परेशान हो चुकी है, लेकिन पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई दोस्त. पिक्चर तो अभी शुरू हुई है. अब क्या हुआ नेक्स्ट? मिसेस पियर्सन ने डोरिस से पूछा, बाय द वे तुम्हें वो येलो सिल्क पहन के जाना कहाँ है? डोरिस सेड दैट आई टोल्ड यू दैट आई एम गोइंग टू मीट चार्ली स्पेंस. चार्ली स्पेंस इज डोरिस वेरी गुड फ्रेंड.
or we can say boyfriend, right, to whom she is dating. Now mother, Mrs. Pearson, आज तक कभी उन्होंने बदतमीजी से तो छोड़ो, क्वेश्चन आंसर वे में भी बच्चों से इंटेरोगेशन नहीं किया था दैट वेयर आर यू गोइंग एंड व्हाई, बिकॉज बच्चे उनको इतना लायक समझते नहीं थे कि बताएं. आज तो कुछ मिरेकल ही हो गया. ना कि सिर्फ मिसेस पियर्सन ने इंटेरोगेट किया कि कहाँ जा रही हो, किससे मिलने. डोरिस ने बता दिया स्ट्रेट फॉरवर्डली विदाउट एनी फेयर, बिकॉज डोरिस को पता था कि मॉम की कोई राइट्स नहीं है मुझे रोकने के, इसलिए शी टोल्ड इन अ बोल्ड मैनर दैट आई एम गोइंग टू मीट चार्ली स्पेंस. नाउ लुक एट मिसेस पियर्सन्स बिहेवियर. मिसेस पियर्सन ridiculed, made fun of Charlie Spence in the front of Doris and advised her to find someone better than Charlie Spence. Mrs. Pearson said that if I would have been in your shoes, then I would have never ever dated such a half-witted and buck-teeth man. Go and have some choice, and you deserve. I think you must have a better taste. ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई. मिसेस पियर्सन ने बोला अगर मैं तुम्हारी जगह होती कभी भी ऐसे लड़के के साथ ना जाती, तुम्हें थोड़ा अच्छा टेस्ट रखना चाहिए. चार्ली स्पेंस इज अ हाफ विटेड, पागल आदमी है, बकटी, दांत बाहर निकले हुए हैं, ऐसे लड़के के साथ तुम घूमती हो. Doris started crying and she has her eyes out and she's crying and she's wailing and she's in a bad temper now. कि मॉम की इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, क्योंकि मॉम ने आज तक ये रूप नहीं दिखाया था. एंड डोरिस वहां से रोती रोती चली जाती है. नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी साइरल. साइरल कौन है? डोरिस के भाई मिसेस पियर्सन एंड मिस्टर पियर्सन के बेटे, राइट, द ओनली सन साइरल. नाउ व्हेन द साइरल एंटर्ड द प्लेस, साइरल स्टार्टेड शाउटिंग दैट मॉम, that means Mrs. Pearson, Mom, जब मैं सुबह गया था मैंने आपसे कुछ मेंडिंग वर्क करने को कहा था. इज इट रेडी? आई एम इन हरी, आई हैव टू गो टू अ पार्टी. मैं ऑफिस से काम करके आ रहा हूँ एंड आई हैव नो टाइम टू स्पेयर एंड आई हैव टू गो टू अ पार्टी. सो इज माई मेंडिंग वर्क डन? मैं सुबह आपको बोल के गया था कि मेरा सब सामान निकाल के रखना, एंड इफ एनी मेंडिंग इज रिक्वायर्ड इन एनीथिंग देन प्लीज कीप इट डन. साइरल ने पूछा. साइरल ने तो जनरली क्वेश्चन पूछा जैसे वो मॉम से रोज पूछता था, कपड़े तैयार हैं, खाना तैयार है, मेंडिंग वर्क डन है. मॉम हमेशा क्या रिप्लाई करती थी? हाँ बेटा डन है, और दे देती थी. लेकिन आज आपको क्या लगता है मॉम रिप्लाई करेगी कि हाँ बेटा डन है मेंडिंग वर्क? क्या होगा भी सही? ऑब्वियसली नहीं. मिसेस पियर्सन ने जवाब दिया नो इट इज नॉट, मेंडिंग वर्क इज नॉट डन. साइरल व्हाई? आपको पता नहीं है मुझे जाना था पार्टी में. मिसेस पियर्सन नन ऑफ माई बिजनेस, आई डिडंट फील लाइक डूइंग इट, मेरा मन नहीं था, मैंने नहीं किया. साइरल इज शॉक्ड एंड इज बेविल्डर्ड. मॉम लुक एट द वे यू आर टॉकिंग टू मी. मैं सुबह से काम करके थक के आया हूँ, एक छोटा सा काम आपको बोल दिया था, आपने वो भी नहीं करके रखा. मॉम अब तो बेटा साइरल गया, साइरल को बोला, डांटा, मेंडिंग वर्क नहीं किया, और नहीं किया तो ठीक है, उसके बाद उसको थोड़ा सा और रिडिक्यूल किया ये बोलकर मेरा तुम्हारा ऑफिस में काम करने का मन नहीं होता तो तुम लोग एक अपनी पूरी टीम बना लेते हो और काइंड ऑफ एक रिवोल्ट पे बैठ जाते हो दैट यू वोंट डू दिस वर्क. घर में काम करने का मन नहीं होता, यू सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्डली से ऑन माई फेस दैट यू आर नॉट फीलिंग लाइक डूइंग इट. सिमिलरली तुम ऐसे बोल सकते हो, तुम्हारा ऑफिस में काम करने का मन नहीं होता, तुम यूनियन बना के मना कर देते हो, घर में काम करने का मन नहीं होता, स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर सकते हो. मेरा काम करने का मन नहीं था, मैं क्यों स्ट्रेट फॉरवर्डली मना नहीं कर सकती? साइरल ने जैसे ही मिसेस पियर्सन का ये जवाब सुना, साइरल हैरान परेशान रह गया, ये मॉम को हुआ क्या है. इतना होने के बाद डोरिस एंटर होती है एंड डोरिस साइरल से पूछती है. डोरिस इज क्राइंग ऑब्वियसली एंड आस्क्ड साइरल, have mom also behaved in the similar manner with you like she did with me? साइरल कह रहे हैं हाँ यार कुछ अजीब तो है, आज समझ नहीं आ रहा व्हाट्स रॉन्ग. डोरिस कहती है मुझे लग रहा है she has hit her head or something, कहीं उनके सिर पे चोट लग गई और वो तो पागल हो गई हैं. ये दोनों आपस में डिस्कशन कर रहे हैं एंड डोरिस कह रही है यू नो व्हाट, मैंने मॉम को देखा दैट मॉम वाज स्मोकिंग व्हेन आई एंटर्ड द हाउस.
and she's ridiculing everybody, and she's making fun of everybody. She has mocked Charlie Spence as well. She's trying to cheat everybody in the place. तुम्हारे साथ भी बदतमीजी से बिहेव किया, मेरे साथ भी किया, and she's smoking as well. There is something wrong. ये बातचीत कर ही रहे होते हैं और हंस ही रहे होते हैं. जैसे ही डोरिस ने बोला कि मुझे लगता है that she has hit her head or something, साइरल कहता है What do you want to say? मॉम पागल हो गई हैं, और वो दोनों हंस रहे हैं. ये सीन चल ही रहा था. एंटर होती है मिसेस पियर्सन. एक्चुअली आत्मा किसकी है? बताओ. डू राइट इन द कमेंट बॉक्स. ऑल राइट. सो अब मिसेस पियर्सन की एंट्री होती है, और मिसेस पियर्सन गुस्से में इन दोनों को बोलती हैं, डांटती हैं एक्चुअली, कि तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? वाई आर यू मेकिंग फन ऑफ मी? साइरल को गुस्सा आता है और बोलता है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू मॉम? कांट वी इवन लाफ नाउ? क्या हम हंस नहीं सकते? मिसेस पियर्सन रेप्रिमैंड्स देम फॉर लाफिंग विदाउट एनी रीजन. वो और गुस्से में डांटती है, मजाक उड़ाती हैं एंड डांटती हैं कि हंसना इज नॉट बैड फॉर हेल्थ, बट देन विदाउट एनी रीजन. एंड उनको और मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि बचपन से तुम्हारे सिली जोक सुन रही हूँ, कभी भी हंसी नहीं आती. सो स्टॉप डूइंग दैट. आई वेरी वेल नो व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट. इट्स बेटर यू गो टू योर वर्क्स, बोथ ऑफ यू. अब साइरल और डोरिस दोनों हैरान, ये हुआ क्या है? एंड दे आर इन डिलेमा. इज मॉम ऑल्सो गोइंग टू बिहेव इन द सिमिलर मैनर विद डैड? क्योंकि टाइम हो गया है डैड के वापस आने का. एंड दे आर क्यूरियस टू सी हाउ मॉम इज गोइंग टू बिहेव विद द फादर, द हेड ऑफ द फैमिली, जो कि उस समय बहुत रिस्पेक्टेड फिगर माना जाता था. नाउ नेक्स्ट एंट्री फादर की होती है. आई वॉन्ट टू आस्क यू, आपको क्या लगता है, क्या मिसेस पियर्सन मिस्टर पियर्सन से भी इसी तरह बिहेव करने वाली है या नहीं? टू टेल अस बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स. उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ. यस, मिसेस पियर्सन बिहेव्ड इन द सिमिलर मैनर with Mr. Pearson, that is George, as well. The moment George entered the place, George was aghast, astounded, bewildered, puckered bro to see Mrs. Pearson drinking stout. Now Mrs. Pearson is having an alcoholic drink and also smoking, and George Pearson, who has never seen his wife smoking and drinking alcohol, is bewildered to see Mrs. Pearson in such situation. पूछता है आती अपनी वाइफ से, तुम कैसे आज, I mean, how come you are having alcohol? This stout, I mean, this is so shocking, as I have never ever seen you drinking, Mrs. Pearson. I like it, that's why I'm enjoying it. This is none of your business. जॉर्ज हैरान हो जाता है, ये कैसे बात कर रही है मुझसे बदतमीजी से. नाउ जॉर्ज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑल राइट, पी लो, तुम्हें पीना है स्टाउट तो, बट हाँ, इज माई टी रेडी? एंड जॉर्ज ने बोला, एनीवे मैं ये कहना चाहता हूँ दैट आज मुझे एक पार्टी में जाना है, क्लब, एंड आई विल बी लेट एंड आई विल हैव माई डिनर देयर ओनली, दैट्स व्हाई आई वोंट हैव टी. मेरी चाय मत बनाना. बिकॉज इट वॉज कस्टमरी दैट एवरी इवनिंग बिफोर जॉर्ज यूज टू एंटर द प्लेस, मिसेस पियर्सन उनके लिए चाय बना के रखती थी. जॉर्ज आता था एंड चाय पीता था, रोज आती पूछता था इज द टी रेडी, एंड मिसेस पियर्सन उन्हें चाय दे देती थी. आज भी ऐसा ही हुआ. जॉर्ज ने आते ही बोला, मैं नहीं पीऊंगा आज चाय बिकॉज आई हैव टू गो टू अ पार्टी. नाउ मिसेस पियर्सन सेड, एनीवे इट वाज नॉट रेडी. वैसे भी किसने बनाई थी तुम्हारे लिए चाय? जॉर्ज, क्यों? ये तो चलो आज मैं जा रहा हूँ पार्टी में, व्हाट इफ मेरे को पीनी होती चाय तो क्या होता? बनाई क्यों नहीं तुमने? मिसेस पियर्सन, तुम मुझसे इसलिए लड़ रहे हो क्योंकि तुमने चाय नहीं पीनी थी जो वो मैंने नहीं बनाई है. कि दिस इज सो फनी. तुम्हें पीनी होती और मैं नहीं बनाती और तुम लड़ते फिर भी समझ आता. मिसेस पियर्सन, guys, this is so amazing that my husband is fighting with me that I have not got the tea ready that he didn't even want to drink. This is seriously ridiculous. Now, George अपने आप को बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर समझते हुए बोल रहे हैं कि मेरे को पीनी थी या मुझे नहीं पीनी थी, तुम्हें रेडी करके रखनी चाहिए थी.
दिस इज द पोजिशन ऑफ द मदर इन द हाउस. कैन यू सी दैट? बट आज तो मदर के हालात थोड़े बदले हुए हैं. आज तो मिसेस पियर्सन की जगह मिसेस फिट्जजेराल्ड है अवतार में. तो मिसेस फिट्जजेराल्ड ने मौके का फायदा उठाया और बोला बना के रखनी चाहिए थी टी. मैं अब मजाक उड़ाना शुरू किया जॉर्ज का. मैं बताती हूँ तुम्हें कि तुम्हारी क्या पोजीशन है. क्लब में जाना था तुम्हें एंजॉय करने, जाओ क्लब में. पीपल आर वेटिंग फॉर यू ओवर देयर टू मेक फन ऑफ यू, टू मॉक एट यू बाय कॉलिंग यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन. जॉर्ज तो बहुत ही गुस्से में आ जाता है. पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन? मिसेस पियर्सन, यस, डोंट you know that? They make fun of you, they mock at you every day by calling you lazy and fat and pompy Pearson. जॉर्ज कह रहे नो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ. मिसेस पियर्सन कह रही है ओह, बिकॉज तुम रोज जाते हो वहाँ, दैट्स वाई तुमने अपना मजाक उड़वा लिया है. हर रोज जाकर एक अपने आप को मॉकरी का एलिमेंट बना लिया है. जॉर्ज कह रहे ऐसा नहीं हो सकता. लेट मी आस्क साइरल. साइरल भी मेरे साथ काफी बार क्लब गया है. And he confirms it from Cyril. And Cyril said, yes dad, they make fun of you. डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और जॉर्ज पियर्सन वहाँ से चला जाता है. इतने में साइरल मिसेस पियर्सन को कहता है दैट मॉम, आपको डैड को ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, उनको बुरा लगा. मिसेस पियर्सन, जो मुझे आज तक बुरा लगता आया वो क्या? साइरल चुप हो जाता है और सोचता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम. And Mrs. Pearson then again tries to make fun of Cyril by saying कि जो तुम पैसा वेस्ट करते रहते हो in your games and in your fun loving activities, उसके बारे में भी मैं तुमसे बात करने वाली हूँ. that is sheer wastage of time and money. Cyril जवाब देता है कि I enjoy that, but Mrs. Pearson उसका भी मजाक उड़ा देती है ये बोल के that तुम्हें उनके बारे में कुछ पता भी नहीं, just waste your time and money. Moving to the next scene. Now enters, bell बजती है and enters Mrs. Fitzgerald. Now Mrs. Fitzgerald is not Mrs. Fitzgerald, it's Mrs. Pearson basically. आत्मा किसकी है? Mrs. Pearson की. And Mrs. Fitzgerald was quite curious to know what is happening in my family. उसको बहुत डर भी लग रहा था कि पियर्सन बहुत ज़्यादा बेइज्जती ना कर दे मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की. सो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो घर आती हैं, बेल बजाती हैं. जैसे ही बेल बजता है तो साइरल थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो बूढ़ी लेडी आ गई हैं. मिसेस पियर्सन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है स्टॉप कॉलिंग हर बाय अब्यूजिव नेम्स, शी इज फार मोर इंटेलिजेंट देन एनी ऑफ यू इन द फैमिली. मजाक उड़ाते हुए साइरल को डांटती हैं कि हाउ डेयर यू, तुमने मिसेस फिट्जजेराल्ड का मजाक उड़ाया, ये बोलते हुए कि वो बूढ़ी ओल्ड बैग है. नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की हैं. आज के बाद उनके बारे में ऐसा नहीं बोलोगे. साइरल को डांट दिया मिसेस पियर्सन. नाउ फिट्जजेराल्ड की एंट्री हुई. फिट्जजेराल्ड आके बैठी एंड जॉर्ज पियर्सन ने फिट्जजेराल्ड के आगे कंप्लेन करना शुरू कर दिया मिसेस पियर्सन का कि ये बहुत बदतमीजी से बिहेव करी एंड ऑल दैट. मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि बहुत डरी हुई है, घबराई हुई है, वो बोलती है नहीं मिसेस पियर्सन, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था. मिसेस पियर्सन को गुस्सा आया. पहले तो बोली फिट्जजेराल्ड तुम्हें चुप रहना चाहिए, इट इज अवर फैमिली मैटर. दूसरा बोली जॉर्ज को तुम्हें इतने एटिकेट्स होने चाहिए दैट हाउ अ पर्सन शुड बिहेव इन द फ्रंट ऑफ some strangers, in the front of guests that have come to the place. तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? कैसे तुम बिहेव कर रहे हो इन द फ्रंट ऑफ गेस्ट जो घर पे आए हुए हैं? ऐसे तुम्हें बिहेव नहीं करना चाहिए. यू मस्ट हैव एटिकेट्स. एंड दूसरा, तुम गर्ल्स की चिट चैट के बीच में आके बैठ गए हो. व्हाई डोंट यू गो टू क्लब एंड गेट योर सेल्फ रिडिक्यूल्ड, गेट योर सेल्फ मॉक्ड देयर. अब मिसेस पियर्सन के आगे मजाक उड़ा जॉर्ज का. ये तो जॉर्ज से बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा. जो जॉर्ज अपने आप को हेड ऑफ द फैमिली समझता है, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग मेल पार्ट समझता है, उसका घर वालों के आगे मजाक उड़ना तो ठीक था, अब तो मिसेस फिट्जजेराल्ड के आगे भी बेइज्जती हो गई बाय मिसेस पियर्सन. दिस इज रियली ट्रबलसम नाउ. मिसेस फिट्जजेराल्ड कंप्लेन मिसेस पियर्सन asserts her authority not to forget the etiquettes. मिसेस पियर्सन को गुस्सा आता है और वो कंप्लेन करती है मिस जॉर्ज को दैट नॉट टू फॉरगेट द एटिकेट्स. अपने एटिकेट्स, अपने मैनर्स नहीं भूलो, अदरवाइज बहुत बुरा हो जाएगा.
एक छोटा सा हीटेड डिस्कशन होता है दोनों के बीच में, माहौल बहुत गर्म हो जाता है, एंड नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड हैज बिकम रियली एप्रीहेंसिव, बहुत डर गई हैं, एंड वो बोलती हैं सबको कि तुम सब बाहर जाओ, लेट मी टॉक टू मिसेस पियर्सन, एंड मैं कोशिश करूंगी मिसेस पियर्सन को समझाने की। बच्चे और जॉर्ज कहता है हाँ प्लीज डू द फेवर, तुम प्लीज, तुमसे हो पाए तो तुम संभाल लो, हमसे तो याद संभल नहीं रही, पता नहीं कौन सी काली माता का रूप आया हुआ है। नाउ सब लोग बाहर चले जाते हैं, मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड, दे बोथ आर सिटिंग टुगेदर, and Mrs. Fitzgerald is requesting Mrs. Pearson to change the personalities again. Mrs. Pearson is saying that you please wait for a few more minutes. थोड़ा देर और इन्हें सीधा कर लेने दे, ये जिंदगी भर तुझे कभी तंग नहीं करेंगे. But Mrs. Pearson is forcing, is pestering Mrs. Pearson to do it right now because अब इनको बहुत डर लग रहा है, right? And फिर से again Arshita Dum, Arshita Lum, Arshita Lum, Dum Bona, and they have switched the personalities again. Now Mrs. Pearson is Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald is Mrs. Fitzgerald, right? Mrs. Fitzgerald is leaving the place, but before leaving, Mrs. Fitzgerald is warning Mrs. Pearson. अगर तुमने, Mrs. Pearson को क्या कह रही है Fitzgerald, अगर तुमने एक बार भी सॉरी बोला या तुमने कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी, माइंड इट, सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा, फिर से पहले जैसा हो जाएगा. सो इफ यू रियली वांट टू रिमेन द थिंग्स इन द वे दे आर राइट नाउ, यू विल हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्टर्न, एडमेंट, एंड बिहेव इन such a confident manner with your family members that I was doing. So the kind of atmosphere I have tried to create in your family, you will have to recreate that if you want a changed attitude of all your family members. But फिर से मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही है, याद रखना, सॉरी नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट बिहेव इन द सिमिलर मैनर जैसे मैं बिहेव कर रही थी. मिसेस पियर्सन बोल रही है, I'll try to, I mean I'm not sure but let me see. Mrs. Fitzgerald, no Mrs. Pearson, try नहीं, you will have to do that, otherwise पूरे करे कराए पे, बड़ी अच्छी कहावत है, पानी फिर जाएगा. Now मिसेस पियर्सन के समझाने के बाद मिसेस फिट्जजेराल्ड के समझाने के बाद मिसेस पियर्सन ट्राई करती है टू बी बोल्ड एंड बुलाती हैं सबको वहाँ और बोलती हैं, मिसेस फिट्जजेराल्ड उसे जाते जाते बोल के जाती है, क्या ऐसी चीज़ थी जो तुम हमेशा से करना चाहती थी. मिसेस पियर्सन सेड, one thing, I like playing cards, I always wanted to play the game of rummy with my family, but I could only do that on Christmas Eve because ये घर के बच्चे कभी माँ के साथ बैठते ही नहीं थे. She used to remain doing in household things all the day. So पहला तो मिसेस पियर्सन ने एक इच्छा जताई कि मैं रमी गेम खेलना बहुत एंजॉय करती हूँ और मैं चाहती हूँ पूरी फैमिली के साथ खेलूँ. मिसेस फिट्जजेराल्ड ने कहा, जो जो तुम चाहती हो अब वो सब होगा, तुम देखना तुम्हारे घर वालों में कितना चेंज तुम्हें दिखाई देगा. एंड नेक्स्ट थिंग जो मिसेस पियर्सन चाहती थी वो क्या थी कि मेरे घर वाले, घर के बच्चे मेरा घर के काम में थोड़ा सा सपोर्ट करें, राइट. सो नाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड बोल रही है दोनों काम होंगे, यू विल हैव टू बी जस्ट स्ट्रॉन्ग एंड ऑर्डर देम. अब नेक्स्ट सीन, मिसेस फिट्जजेराल्ड चली जाती है वहाँ से, शी सेज बाय टू एवरीबडी एंड चली जाती हैं. बट समवेयर एट द कॉर्नर ऑफ द रूम वो खड़ी हैं और अभी भी गाइड कर रही है मिसेस पियर्सन को कि स्टिक टू योर एडमेंट एटीट्यूड. नाउ मिसेस पियर्सन, साइरिल, डोरिस एंड मिस्टर पियर्सन चारों हैं रूम में, एंड मिसेस पियर्सन बोलती हैं, आज हम सब रमी का गेम खेलेंगे. We'll have a card game, rummy game together. And after that, Cyril and Doris, they both will cook supper for us. Meanwhile, Mr. Pearson and Mrs. Pearson, we both, like Mr. Pearson and I, we both will sit and discuss some important matters, family matters. George Pearson सुनते कहता है, oh thank God I'm safe. At least मेरे को इतना बदतमीजी का कोई काम नहीं दिया गया या इतना बेइज्जत नहीं किया गया कि तुझे पोछा लगाना है और झाड़ू लगाना है. बट देन जॉर्ज बोलता है बच्चों को, बेटा तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, खाना बनाना पड़ेगा. पहले थोड़ा सा डोरिस का एटीट्यूड नेगेटिव होता है
as she started saying like me and cooking, and how would it be possible for me, but mom, Mrs. Pearson, strongly ridiculed by saying, क्या बोली, दोबारा रिपीट करो. Doris, okay, मैं तो कह रही थी कि मैं खाना बना दूंगी. And Cyril also said yes. They both cooked the meal for them. Meanwhile, they discussed, like Mr. Pearson and Mrs. Pearson had a healthy conversation about the family matters. So this is the end of the chapter, where we see all the family members behaving in the manner Mrs. Pearson always wanted them to behave. So all credit goes to Mrs. Fitzgerald. उन्होंने एक अच्छे नेबर का फ़र्ज़ निभाया. उन्होंने मिसेस पियर्सन को प्रॉब्लम में देख के उनकी हेल्प करने की कोशिश करी. एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये, टू स्विच द पर्सनैलिटीज़. कुछ भी हो सकता था, प्रॉबेबली वो अपनी पर्सनैलिटीज़ में कभी वापस ना आते. बट देन शी टुक सच अ ग्रेट रिस्क ओनली टू हेल्प अ नेबर, दैट टू न्यूली मेड फ्रेंड. सो दिस इज़ a great effort or an initiative done by Mrs. Fitzgerald that we appreciate and applaud her for. Whereas Mrs. Pearson, जो पूरी जिंदगी अपना काम करती रही, उनका रोल यहाँ पोर्ट्रे करने का एक रीज़न है थोड़ा सा आप सबको ये मैसेज देने के लिए that Mrs. Pearson is just the synonym of all the mothers, especially in India. They keep on working hard all day without complaining, without asking for anything. But that doesn't mean that we should start taking her for granted. ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए. वो बोले या नहीं बोले, we must try to inquire her desires. What does she want in her life? What does she enjoy? And we should contribute a bit in making her happy, in making her enjoy the luxuries or enjoy the things that she wants to do in her life as well. This is our duty, basically, as a child, what all we should do, we should know that. And this chapter acts as an eye opener for all the students, for all the people out there who at times knowingly or unknowingly behave in a bad manner, in a ridiculing manner with the mothers. आज के बाद हमें ऐसा नहीं करना. We should learn a lesson. And before winding up the chapter, I would like to take a promise from you all that आज के बाद हम सब अपनी मॉम के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे. We'll respect them and कोशिश करेंगे knowingly या unknowingly कभी भी उन्हें hurt ना करें. Thank you so much, and a big tribute and reverence and veneration for all the mothers out there. Thank you so much, and stay tuned.